नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज में मैं अफरा जबीन आपका इस्तेकबाल करती हूँ। आंध्र प्रदेश के जिला मार्कापुर में रायवरम के करीब एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 14 लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस में 40 लोग सवार थे, जो हैदराबाद ता पामोर जा रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई है। हादसे की वजह बस का एक टिप्पर लॉरी से टकराना बताया गया है। हादसे के बाद टिप्पर भी पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली इजलास में सवाल जवाब सेशन के दौरान तिबी शोबाजात में हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात और गरीबों के इलाज के लिए जारी करदा फंड्स की तफसीलात पेश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के लिए जारी किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत 2400 करोड़, जबकि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए 2046 करोड़ की इजराई का भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में दावा पेश किया है। అదేవిధంగా సిద్దిపేట శాసనసభ్యులు కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం, గత ప్రభుత్వంలో చాలా బాగా జరిగింది, ఇప్పుడు అంత గొప్పగా జరగడం లేదనే ఆరోపణలు కూడా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. తమరి ముందు వాస్తవాలను సభ్యుల ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలు కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 2014 నుంచి డిసెంబర్ 6, 2023 వరకు ప్రతి నెల యావరేజ్గా గత ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది 52 కోట్ల రూపాయలు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీలో. డిసెంబర్ 7, 2023 నుంచి మార్చ్ 25, 2026 దాదాపుగా 26, 27 నెలలలో ప్రతి నెల ఈ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది 89 కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష యావరేజ్గా. అదేవిధంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేమెంట్లు ఇవ్వడం లేదు, దాంతో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ మూతపడుతున్నాయి, మాకు నోటీస్ ఇచ్చిండ్రు, మీరు ఇంకా దాని మీద స్పందించడం లేదన్నట్టుగా ఏదైతే మాట్లాడుతుండ్రో ఈ వారసత్వం వారి నుంచి మాకు వచ్చింది అధ్యక్ష. ఈ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు పెట్టి అధికారాన్ని కోల్పోయి ఆ భారాన్ని మా నెత్తి మీద పెడితే ఆ భారాన్ని మోస్తూనే మేము 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ విషయం కూడా 7 తారీఖు నాడు మేము ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు 7/12/2023 నాటికి గత ప్రభుత్వం నుంచి వారసత్వంగా మాకు వచ్చిన భారము 600 కోట్ల 27 లక్షలు అధ్యక్ష. 600 కోట్ల 27 లక్షల రూపాయల భారము గత ప్రభుత్వం నుంచి మాకు వారసత్వంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీలో భారం వచ్చింది అధ్యక్ష. అందులో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి 240 కోట్ల 11 లక్షలు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో 360 కోట్ల 16 లక్షలు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష మేము ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము చేసిన పేమెంట్స్ 7/12/2023 నాడు మేము పదవి చేపట్టినాక 8/12/2023 అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2023-24 అంటే కంప్లీట్ మార్చ్ 31, 2024 వరకు వాళ్ళు లేరు అధ్యక్ష. 3 నెలల ముందే ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్నది. ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్న 8/12/2023 నుంచి ఈ రోజు వరకు 2,408 కోట్ల రూపాయల 51 లక్ష ఇప్పటి వరకు మన ప్రభుత్వం పే చేసింది అధ్యక్ష. ఇందులో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి 927 కోట్ల 99 లక్షలు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి 1,480 కోట్ల 52 లక్షల రూపాయలు. అంటే గవర్నమెంట్లో 34 కోట్లు పర్ మంత్ ఇస్తే ప్రైవేట్లో 55 కోట్లు పర్ మంత్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ రోజు అవుట్ స్టాండింగ్, ఇప్పుడు వారు ఏదైతే చాలా అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందని అంటుండ్రో యాజ్ ఆన్ డేట్ 25th వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ రోజు వరకు 727.75 కోట్లు. रुकने असेंबली और बीआरएस पार्टी लीडर तलासानी श्रीनिवास यादव ने 42% तहफुजात की हदबंदी पर कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। श्रीनिवास यादव ने तहफुजात के हवाले से कांग्रेस पार्टी के इक़दामात को ड्रामाबाजी करार दिया।
तलासानी ने कहा कि संजीदा हुकूमतें ड्रामाबाजी करने के बजाय फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करते और अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का काम करती है। గతంలో అనేకమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కావచ్చు, తీర్మానాలు చేసి రాష్ట్రపతి గారికి పంపించి పార్లమెంట్లో మరి 9th షెడ్యూల్లో పెట్టాలనేటువంటిది అందరూ ముఖ్యమంత్రులు చేశారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఇదే శాసనసభలో ఆ తీర్మానం పెట్టినప్పుడు మా మిత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మనం అందరం యునానిమస్ సపోర్ట్ చేయాలంటే ఆ రోజు కూడా నేను మాట్లాడినా, చేస్తాం మాకేం అభ్యంతరం లేదు అని యునానిమస్గా సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇది 9th షెడ్యూల్లో అయితే తప్ప ఇది మనం తీర్మానం చేసి పంపించినంత మాత్రాన కాదు అంటే హరీబరీగా డిపార్ట్మెంట్ని పక్కన పెట్టి, మా బీసీ కమిషన్ని పక్కన పెట్టి డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా జరగాలని, ఆ తర్వాత జీవోల ద్వారా జరగాలని, ఆర్డినెన్స్ ద్వారా జరగాలని హరిబరి చేయడం, ఆ తర్వాత ఢిల్లీకి జంతర్ మంతర్ దగ్గరికి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు, మా గౌరవ మంత్రులు కావచ్చు, శాసనసభ్యులు కావచ్చు, ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, అక్కడ ధర్నా చేశారు అధ్యక్ష. మమ్మల్ని అప్పుడు ఒక డెలిగేషన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు ఆల్ పార్టీ, అది జరగలే. జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నా చేసేటప్పుడు పార్లమెంట్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. పార్లమెంట్ జరిగినప్పుడు ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం టోటల్గా, అంటే ప్రభుత్వం అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు కాదు అధ్యక్ష, गौरव शासनसभा। किसानों के एक ग्रुप ने तेलंगाना हुकूमत पर किसानों की 1200 एकड़ अराजी पर कब्जा करने और सनती पार्क के नाम पर किसानों को उनकी अराजी से महरूम करने की साजिश का इल्जाम आयद करते हुए परगी बस स्टैंड के रूबरू एक एहतजाजी धरना दिया। कशीदगी में उस वक्त इजाफा हो गया जब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने खवातीन का लिहाज किए बगैर उन्हें एहतजाज करने से रोकने की कोशिश की। एहतजाज कर रहे किसानों ने रियल एस्टेट माफिया के लिए किसानों की अराजी छीनने का इल्जाम भी रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाया है। सिकंदराबाद और खैरताबाद टीमों ने खुफिया जानकारी पर फौरी हरकत में आते हुए एचफास्ट टीम और जीएचएमसी की फूड सेफ्टी के हमरा ब्लू बेल्स आइसक्रीम के नाम से काम कर रही एक फैक्ट्री पर अचानक धावा किया और वहां से मियाद खत्म हो जाने वाले आइसक्रीम, मिलावट शुदा अशिया, गैर सेहतमंद बख्श चीज़ों को जब्त कर लिया। पुलिस ने बगैर लाइसेंस के फैक्ट्री चलाने और नए कवानीन की दफात के तहत पुतला अशोक नामी एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। जुमला 1,75,000 का मिलावटी सामान भी जब्त कर लिया गया है। याकुतपुरा रुकने असेंबली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर जाफर हुसैन मेराज ने ऐवान असेंबली में पकवान गैस की अदम सरबराही पर हुकूमत तेलंगाना पर बरहमी का इजहार किया। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मुनासिब सप्लाई के मुतालिक सरकारी दावों के बावजूद एलपीजी तक रसाई में घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को मुश्किलात पेश आ रही है। एलपीजी सिलेंडर्स के मुतालिक ज़मीनी हालात पर रोशनी डालते हुए जाफर हुसैन मेराज ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया वो बिला ताखिर एलपीजी किल्लत के मसले को हल करने के इक़दामात उठाए। स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा आज सीधे सवाल ये है कि आज की तारीख में बहुत बर्निंग इशू है। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसमें डिटेल थोड़ी सी रिप्लाई दे दिए तो बड़ी मेहरबानी। आज जो एलपीजी गैस का प्रॉब्लम चल रहा है सर, मेरा सवाल उस पे है सर। हमारे तेलंगाना के अंदर मेरी नॉलेज के हिसाब से टोटल 1.29 करोड़ कंज्यूमर है साहब, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर 810 है सर। डोमेस्टिक डेली रिक्वायरमेंट 2.5 लाख सिलेंडर की जरूरत है सर, और कमर्शियल डेली रिक्वायरमेंट 35,000 सिलेंडर की जरूरत पड़ती सर। जो डोमेस्टिक का रेट है 965 है सर, कमर्शियल का 2106.50 है सर। पहले जो डोमेस्टिक
डोमेस्टिक की बुकिंग होती थी सर, 1 डे की बुकिंग होती थी सर, और इमीडिएट उसको 1 और 2 डेज में डिलीवरी दे देते थे सर। आज डोमेस्टिक की बुकिंग बोल रहे हैं सर 25 डेज की होंगी सर, और डिलीवरी 4 to 5 डेज में देंगे, जबकि कमर्शियल की बुकिंग 1 to 2 डेज में देते थे सर। आज कमर्शियल टोटल नील है सर, कमर्शियल की बुकिंग बिल्कुल नहीं हो रही सर। ये हुकूमत कहती है और सेंट्रल हुकूमत भी कहती गैस का शॉर्टेज नहीं है, गैस का शॉर्टेज नहीं है तो आज लोग क्यों परेशान है सर? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए से, मेरा पर्सनल आपके जरिए से हुकूमत को रिक्वेस्ट है सर कि अभी कमर्शियल के लिए कुछ ना कुछ आप स्ट्रीमलाइन करिए सर। कमर्शियल वाले परेशान है, जिसके लिए उन लोग लेबर को निकाल दे रहे, लेबर भूखा मर रहा सर, उसके लिए भी तवज्जो देने की जरूरत है सर। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसके अंदर कुछ अच्छी रिप्लाई देके कमर्शियल वालों को राहत दे दीजिए। वैसे डोमेस्टिक वालों को जब स्टॉक है तो सर पुराने सिस्टम पे सप्लाई दीजिए। 25 दिन के बाद आप देना चाह रहे हैं और 25 दिन के बाद उन्हें बुकिंग करना तो और 25 डेज लेना सर, डिलीवरी के बाद में और 25 दिन लेना, तो 50 दिन में एक सिलेंडर मिलेगा तो मर जाएगा साहब। आपसे अब मेरी अदबन गुजारिश है, इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और प्रॉपर रिप्लाई देके सीएम साहब की नॉलेज में लाए तो बड़ी मेहरबानी सर। स्पीकर सर, ये जो है जो कुछ भी मसला जो हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो स्टेटमेंट्स आने से जो है लोग पैनिक हो गए, उसके बारे में जो है जो कंसर्न सिविल सप्लाई मिनिस्टर उत्तम कुमार साहब जो है बिल्कुल फ्लोर पे जो है क्लियर भी करे, 2 महीने का वास्ते स्टॉक्स बराबर है, कोई भी जो है परेशानी होने का जरूरत नहीं है। गैस के बारे में, डीजल के बारे में और पेट्रोल के बारे में ऑलरेडी इसके बारे में क्लियर कर चुके हैं। फिर भी आप बोले जैसे ये सीएम साहब के नजर में, फिर भी जो है याद दिला के पूरे कोशिश करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर मासूम आवाम को झांसा देकर आवाम को लूटने और उनकी मेहनत की कमाई गबन करने के वाकयात में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक वाकया पुराने शहर इलाके में पेश आया, जहां पर हैदराबाद रैन बाजार पुलिस ने एक ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर अवाम को लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 जून तरफ से पहले आप लोगों को आफ्टर रमजान पहली बार ये प्रेस मीट में हम लोगों को ऐसे मिलने के मौका मिला। इसके बाद से पहले आप लोगों को पूरा रमजान के बारे में मुबारकबाद बोल। नेक्स्ट क्या है बोले तो एक्चुअली ये हरी भरी प्रेस मीट क्या लगा रहे बोले तो ऑनलाइन चीटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में चीटिंग चल रही है बोल के हमारा सीनियर ऑफिसर स्पेशली हमारा ऑनरेबल कमिश्नर साहब और ऑनरेबल डीसीपी साहब के हिसाब से उन लोगों का इंस्ट्रक्शन बारे में ये 2 पिटिशन आए हमारा को। 2 पिटिशन में पूरा 12 विक्टिम्स, उसमें 7 विक्टिम्स मीर चौक में, 5 विक्टिम्स रेन बाजार लिमिट्स में रहता। वो 12 विक्टिम्स वो कंप्लेंट क्या बोला तो हम लोग डिजिटल के बारे में, डिजिटल में हम लोग रील्स बता के हमारा को चीट करे, उसमें होते ऑनलाइन में अमाउंट पे करे तो तुम लोगों को 6%, 8%, 9% कमीशन आते हैं। वो वर्क फ्रॉम होम में बैठ के वो कमा सकते बोले तो हम लोग उसके बारे में हम लोग उन लोगों को बात सुन के हम लोग उसमें अमाउंट पे करने के बाद उन लोग जब से वो अमाउंट तो ले लिए, लेकिन उसके बाद हम उन लोग अभी भी हमारे को फोन में रेस्पॉन्ड नहीं हो रहे। और एक हम लोग पर्सनली उन लोगों का ऑफिस करमन घाट में उन लोगों को 2 दिन 5 डेज नहीं तो एक 10 डेज उन लोग ट्रेनिंग देते। वो ट्रेनिंग के बारे में उन लोग वहां भी जाके पूछो तो भी उन लोग कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं हो रहे बोल के इसके बारे में उन लोगों ढूंढ के आके पीएस में फाइनल लास्ट स्टेज में आके पीएस में वो कंप्लीट करे। मेनली क्या है बोले तो उन लोगों ये 2 आदमी हमारा को अपहरण करे। उन लोग कन्फेशन में क्या है बोलो तो 18 to 25 एज को एज लोगों को उन लोगों को थोड़ा वो कॉन्सेंट्रेट करके उन लोगों को ये ट्रैप में खींचने के बाद से उन लोगों मना मेन टारगेट वो है। उन लोगों का हेड ऑफिस बॉम्बे में और एक वो सिटी का और तेलंगाना का वो बेगमपेट में उन लोगों का ऑफिस है। बॉम्बे से ये प्रोडक्ट्स वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोल के बॉम्बे से आते बोल के उन लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली वहां से बॉम्बे से बेगमपेट आते, बेगमपेट से वहां से डिस्प्यूट आते, पूरा डिस्पर्स आते बोल के उन लोगों को बोलने के बाद इन लोग माने, पब्लिक मानने के बाद एक आदमी पहले 200 दिया तो उन लोगों को मेंबरशिप देते। मेंबरशिप देने के बाद उन लोगों को आईडी कार्ड देते। आईडी कार्ड होने के बाद उन लोगों को एक 3 दिन
नहीं तो 5 डेज वो एक ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग भी करमन घाट में उन लोगों का ऑफिस है। एक्चुअल का ये ऑफिस भी उन लोग रखना नहीं, एक्चुअल उन लोग पूरा बेगमपेट में उन लोग ऑफिस है, एक्चुअल वहां रखना। लेकिन अकरम बोल के ये मेन आदमी, ये वन ऑफ द मेन मोहम्मद अकरम बोल के उन्होंने पर्सनली करमन घाट में एक ऑफिस खोल के वहाँ ही पूरा एक 16 कैबिन जैसे पूरा वो हंगामा ऑफिस जैसे वो बना देके पब्लिक को पहले बता के उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, ये मेरा ऑफिस है, इतने आदमी इन लोग। हुकूमत की जानिब से यकीन दिखाने के बावजूद शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत के खौफ में अवाम कतारों में खड़ी दिखाई दे रही है। कई पेट्रोल पंप्स अवामी हुजूम के खौफ में बंद भी कर दिए गए हैं और जहां पर पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां पर अवाम की तवील कतारें देखने को मिल रही है। ओल्ड सिटी हैदराबाद के लाल दरवाज़ा इलाके के एक पेट्रोल पंप पर भी ऑटोस की एक तवील कतार देखने को मिली है। स्पीड न्यूज़ का यहाँ इख्तिताम होता है। अगली जानकारी तक स्पीड न्यूज़ की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।